a short presentation on Geoffrey Hill. Okay, so Geoffrey Hill is one of the most important poets that have been asked in net for the last, you can say, 10 to 12 years. They have been asking questions from his poems, from his various works. Okay, so this excerpt has been taken from Norton Anthology, titled as 20th and 21st Century Writers. Okay, so let's look at this introduction of Geoffrey Hill. He was born in 1932 and he passed away in 2016. So he was born in Worcestershire village of Broomsgrove, educated at high school and at Cable College, Oxford, and he was a professor of English at Leeds University. Very important point for us. Leeds University. Contemporary writers में आ जाएंगे. Leeds University and a lecturer at Cambridge and a professor at Boston University. Okay. In 2010, he was elected professor of poetry at Oxford. This question has been asked. Please do mark it as very important that in 2010, it's a very big honor that he was elected as a professor of poetry at Oxford. As a boy, he was drawn to metaphysical poets. Metaphysical poets कब आए थे भाई? हम जानते हैं 17th century में आए थे metaphysical poets, John Donne and other writers. ठीक है? So they metaphysical poets, fusion of intellectual strength with simple, sensuous and passionate immediacy. ये term इनकी poetry के लिए use हुआ है. ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे. And his own poems after something of the same fusion. What he said of Annunciation too is a very important poem that he composed. So it might have been said of many of his poems, but I want the poems to have this dubious end. This is a quotation that may be asked in net, because I feel dubious and the whole business is dubious. So in his poem there is this element of dubiousness. Please note करेंगे इस word को, dubious. Now dubious means doubtful, skeptical. Please note कर लेंगे, skeptical poet हैं. Religious skepticism इनकी poems की बहुत बड़ी theme है guys. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, धार्मिक शंकावाद इनकी पोएम्स की बहुत बड़ी थीम है. इसके अलावा हम देखते हैं कि जेफरी हिल की पोएम्स में एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलीजियस स्केप्टिसिज्म इनकी पोएम्स में कहां से देखने को मिलता है. जो मूवमेंट पोएट हैं, ये क्वेश्चन इसी के थ्रू बता दे रहा हूँ. मूवमेंट पोएट बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं जो कब आए थे, 1950s में आए थे गाइस. कब आए थे, 1950s में मूवमेंट पोएट्स आए थे. उनकी पोएम्स में हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस थीम थी, रिलीजियस स्केप्टिसिज्म था. तो वही इनकी पोएम में भी दिखता है. ही वाज अ स्केप्टिक कन्फर्मिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, man's humanity to man on the cross and in the concentration camps. concentration camps से क्या समझते हैं आप? ऑफ कोर्स इनका जो एक्सपीरियंस या इनका जो खासकर जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स थे, जो कि हिटलर के इनफेमस कैंप्स थे, उसका एक्सपीरियंस इन्होंने दिखाया है. और ये क्वेश्चन भी बनेगा. ठीक है, और डिलाइट इन द एबंडेंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, पेन एंड प्लेजर अलाइक रेंडर्ड विद कीट्सियन रिचनेस. ये नोट होगा कि इनकी पोएम में कीट्स की जैसी क्या है, एक रिचनेस है. ठीक है, एंड स्पेसिफिसिटी, मॉडर्निस्ट इल्यूसिवनेस एंड सिंटैक्टिक कंटोर्शन. यहाँ पर ये वर्ड नोट हो जाएगा. कंटोर्शन का मतलब क्या है गाइस? Contort means packed with meanings. Brief but packed. नोट करेंगे. संक्षिप्त मगर अर्थ से भरपूर. Brief but packed with meanings और loaded with meanings. ठीक है, contortion. क्लियर हो गया? Even when the poet's earlier self is conflated with that of historical figures, subjectivity is dissolved in the objective. तो ये नोट हो जाएगा कि इनकी पोएम में सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ अ हिस्टोरिकल इमेजिनेशन. देखिए इनके, ये खुद नहीं थे नाजी कैंप्स में, लेकिन इन्होंने एक हिस्टोरिकल इमेजिनेशन का यूज किया है और ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्शन उसको दिखाया है. द होलोकॉस्ट पोएम. होलोकॉस्ट आपको पता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जो जापान में हुआ था होलोकॉस्ट, जो अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी हिरोशिमा नागासाकी की, उस पर है सितंबर सॉन्ग. एलेजाइजेस मींस एलेजी लिखना उस पर.
a victim of Nazi concentration camp, born the day after the poet was born. जिस दिन पोएट पैदा हुआ उसके अगले दिन जो है जो एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप का विक्टिम है वो पैदा हुआ था। इम्प्लिसिटली आप देख रहे हैं इनका ईयर कब है, 1932, तो वही है 32 में पैदा हुआ होगा। ठीक है, विक्टिम ऑफ नाजी कंसंट्रेशन कैंप इम्प्लिसिटली मींस इनडायरेक्टली कंट्रास्टिंग देयर डाइवर्जेंट फेट्स, मतलब दोनों एक ही दिन का बस फर्क था, मगर दोनों का जो फेट है वो बहुत चेंज हो गया। ये सिक्योर हो गए मगर वो बेचारा जो है डेथ कर गया। ठीक है, हिल वॉज एट वंस द मोस्ट एम्बिशियस, मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग कंटेम्प्रेरी पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। इनका जो डेब्यू पोएम है, डेब्यू कलेक्शन है, वो क्या है, फॉर द अनफॉलन। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में माइट बी आस्क्ड, फॉर द अनफॉलन। ओके, पोएम्स from 1952 to 1958। ओके, एंड ये जो है इनकी पोएम्स को अमेरिकन पोएट थे डोनाल्ड हॉल, कौन थे, अमेरिकन पोएट थे डोनाल्ड हॉल ने पब्लिश किया है। एग्जाम्स में आता है इनके बारे में। ठीक है, his works are known for its seriousness and high moral tone, as I have told you, and religious ambiguity। okay, तो ये हिस्टोरिकल, जैसे कि इसमें भी लिखा था कहीं, हिस्टोरिकल पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। तो हिस्टोरिकल पोएम्स इन्होंने लिखी हैं दो तीन, फटाफट नाम लिख लेते हैं उनके। हिस्टोरिकल पोएम्स में इनकी आ जाएंगी किंग लॉग, ये एग्जाम्स में आई है किंग लॉग। और दूसरी आ जाएगी इनकी मर्शियन हाइम्स। ये सीरीज अ लॉन्ग सीरीज ऑफ प्रोज पोएम्स हैं। मर्शियन हाइम्स, हाइम्स का मतलब आप जानते हैं भजन, तो रिलीजियस एलिमेंट भी होगा इसमें। फिर एक इनकी पोएम है टेनेब्रे, ये वर्क भी पूछा गया है नेट में, TENEBRAE। ओके, टेनेब्रे 1978 में आई ये पोएम। इस ये एक लातिन में वर्ड है टेनेब्रे, इसका मतलब होता है डार्कनेस। तो ये गुड फ्राइडे जो कि एक रिचुअल है क्रिश्चियनिटी में, उस पर बेस्ड है। ठीक है, और हिल को क्या बोलते हैं यहाँ पर नोट कर लेंगे, ही इज नोन एज द हेयर टू, यानी उत्तराधिकारी, हेयर टू आर डी हार्डी एंड TS एलियट। TS एलियट का उत्तराधिकारी और हार्डी का उत्तराधिकारी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों को। और इसके अलावा इनका एक वर्क भी है जो लेटेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट रहा, वो है स्पीच स्पीच। शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, स्पीच स्पीच। ठीक है, ये 2005 में आया है। पूरा टाइटल इसका बहुत बड़ा है, द ऑर्चर्ड्स ऑफ सियोन, सीन्स फ्रॉम कोमस। स्पीच स्पीच, चलिए सब टाइटल लिख लेते हैं इसका। द ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड आपको पता है फूलों के बगीचे को कहते हैं, सॉरी फलों के बगीचे को, फलों के बगीचे को ऑर्चर्ड कहते हैं। सियोन, सीन्स फ्रॉम कोमस, ये इसका पूरा टाइटल है। कोमस आपको याद आता है, ठीक है, मिल्टन का कोमस आपको याद होगा। ठीक है, तो वहां से रिलेट कर लेंगे। और फिर एक इनका वर्क है विदाउट टाइटल, वर्क का नाम ही क्या लिखा है इन्होंने, विदाउट टाइटल, ये 2006 में आया है। ये दोनों ही वर्क्स बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड हैं, स्पीच स्पीच, द ऑर्चर्ड्स ऑफ सियोन, सीन्स फ्रॉम कोमस, और विदाउट टाइटल। सो ये जो है लेटेस्ट इनके हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम, पोएट जेफरी हिल। ओके, ठीक है,